Hello, everyone, and welcome to this extremely special Notes Explainer. Okay, let's just dive right into this, क्योंकि आज का topic literally game-changing है. So, what's the biggest fear when you look at a UPSC prelims paper? It's those random, highly confusing ancient and medieval history terms, right? I mean, हर साल 3 से 4 direct questions आते हैं यहीं से. But don't worry, आज हम एक proper history masterclass conduct कर रहे हैं, जहां हम 42 of the most crucial, most confusing terminologies को हमेशा के लिए आपके दिमाग में permanently lock करने वाले हैं. So grab your focus and let's decode history together. Now, to completely avoid any cognitive overload, we've logically grouped these 42 random terms into a structured syllabus tracker. First up is land and agriculture, then trade, followed by religion, administration, literature, and finally a mega revision and MCQ test to lock it all in. So just take a look at the raw handwritten notes we're dealing with today. देखने में बहुत chaotic लग सकते हैं, right? Like a giant puzzle. लेकिन घबराना नहीं है. As your mentor, my job today is to translate this chaotic raw data into crystal clear concepts, historical context, and awesome memory tricks so that आप exam hall में कभी किसी UPSC trap में ना फंसें. All right, let's jump straight into Section 1, Agrarian and Land Systems. Visualize the life of a medieval Indian farmer. Okay, our very first pairing, खुद कश्ता and पाही कश्ता. इसको याद रखने की एक बहुत सिंपल हिंग्लिश ट्रिक है. खुद का मतलब क्या होता है? अपना और सेल्फ, राइट? तो खुद कश्ता वो किसान थे जो अपने खुद के गांव में अपनी जमीन पर खेती करते थे, यानी रेजिडेंट कल्टिवेटर्स. इट्स देयर होम पिच. एंड ऑन द फ्लिप साइड, पाही कश्ता वो लोग थे जो बाहर से आकर किसी दूसरे गांव में खेती करते थे, बेसिकली नॉन रेजिडेंट कल्टिवेटर्स, प्लेइंग एन अवे गेम. सिंपल, राइट? खुद मीन्स रेजिडेंट. Now here's where we hit a massive UPSC trap, so listen closely. Geography is everything here. Kundkati एक joint ownership land system है जो explicitly Chota Nagpur plateau के tribal lineage से जुड़ा है. Please, इसको Dominico से mixed मत करना. Dominico specifically Rajmahal Hills का forested area था जहाँ संताल tribes रहते थे. अगर हम मराठा रूल में जाएं तो ऊपर ही एक tenant tenure की category थी. And finally, Mauza. Mauza बस एक revenue collection unit होती थी जो Pargana boundary के अंदर आती थी. Map these geographically in your head. Kuntkapti equals Chota Nagpur, Dominico equals Rajmahal. Time for prelims booster fact. Let's talk South Indian agriculture. Punchai matlab dry fields या dry soil. और Nankai matlab wet fields जहाँ paddy यानी चावल उगता था. निमानिक सुनो. N से Nankai और N से Nami. Nami matlab wetness. Tattakar का सीधा मतलब है garden lands. Kadpa khar denotes a specific season या office cultivation. और नागराकानी तो याद रखना सबसे आसान है क्योंकि नगरम word इसमें पहले ही है. Nagaram matlab local town या administrative body. So Nagarakani simply means land directly managed by that local nagaram. Everything connects. Moving right along to Section 2, Trade, Economy, and Guilds. Let's see how ancient and medieval businesses operated. So these two terms basically tell a story of colonial and medieval exploitation. दस्तक एक trade permit था. Literally a free pass जिसका East India Company ने extensively misuse किया. और दादनी system, ये completely एक debt trap था. Just imagine an artisan who needs raw materials. He takes a dadni, which is an advance payment या loan, from a merchant. अब वो मजबूर है अपने फिनिश गुड्स उसी मर्चेंट को एक्सट्रीमली सस्ते दाम में बेचने के लिए. बूम, ही इज लॉक्ड इनटू डेट. सो रिमेंबर, दस्तक इज द फ्री पास, दादनी इज द एडवांस पेमेंट ट्रैप. Let's talk about ancient business syndicates. श्रेणी एक बहुत broad general term है ancient India में guilds के लिए, जो merchant goods और gold coins में deal करते थे. But अगर आप South India में जाएंगे तो strictly Indian merchants के guilds को मनीग्रामम और नाना देसी कहा जाता था. Clearly differentiate these. But wait, look at the bottom term, Vishti. Absolutely crucial. ये एक highly repeated PYQ है. Vishti का exact मतलब है forced labor, बिना पे के मजदूरी करवाना. Definitely star mark this one in your notes. All right, next up is Section 3, Religion. We're diving into the Bhakti movement and Buddhism. So the Bhakti movement was fundamentally split into two streams, Saguna और Nirguna. Let's break the words down. Saguna यानी with guna, with attributes. ये वो सेंट्स थे जो भगवान को एक फिजिकल फॉर्म या मूर्ति में पूजते थे. ऑन द अदर हैंड, निर्गुणा यानी विदाउट एट्रीब्यूट्स. ये फॉर्मलेस, निराकार ईश्वर को मानते थे. और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ नोटेड है. इन निर्गुणा मिस्टिक्स की जो एक्चुअली लैंग्वेज होती थी उसे संत भाषा कहा जाता था.
ये एलीट संस्कृत नहीं थी, ये आम लोगों की भाषा थी, सो द मैसेज कुड स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर डायरेक्टली अमंग द मैसेस। हा, अनदर क्लासिक ड्युअलिटी। साउथ इंडिया के भक्ति सेंस। अलवार्स वो थे जो भगवान विष्णु के हार्डकोर डिवोटीज थे, और नायनार्स शिवा के भक्त थे। एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट यूज दिस हिंग्लिश ट्रिक। भगवान शिवा के पास तीसरा नयन है ना, नयन मतलब आंख, आय, तो नायनार्स इक्वल्स शिवा भक्त। बाकी जो बचे वो अलवार्स यानी विष्णु भक्त। लिटरली 1 सेकंड में याद हो गया। Now try to vividly visualize these symbols with me. Let's look at the Buddhist terms first. बुद्धिज्म में एल्डर नन्स को थेरीज कहा जाता था। फिर बुद्धा की एक बहुत आइकॉनिक इमेज है जहां वो अपना एक हाथ जमीन से टच कर रहे होते हैं। इसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। It literally means calling the earth as a witness to his absolute purity and the ultimate goal, निर्वाणा, जिसका लिटरली मतलब है एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम, यानी सारी डिजायर्स का खत्म होना। Now pivot sharply to the Vedic age. श्रोता का मतलब है पब्लिक वैदिक सैक्रिफाइसेस, और इन सैक्रिफाइसेस में जो बड़ा सा वुडन पिलर या पोस्ट यूज होता था उसे यूपा कहते थे। Let's march on to Section 4, Administration and Military Terms. This is the highest yield area for questions. Let's decode the Sultanate and Mughals. इक्ता सिस्टम तो बहुत फेमस है। इस सिस्टम में आर्मी ऑफिसर्स को उनकी सैलरी कैश में ना देकर स्पेसिफिक लैंड यूनिट्स असाइन किए जाते थे, so they could collect the land revenue. Brilliant way to pay the army without draining the royal treasury. सल्तनत पीरियड में बंदगाने खास, स्पेसिफिकली elite royal slaves होते थे। Meanwhile, मुगल एम्पायर में elite troopers को आहादीस कहा जाता था, और बैटल्स में जो heavy cannons यानी तोप यूज होती थी उन्हें मुंजानिक कहते थे। और ऑब्वियसली अकबर ने अलग अलग रिलीजन्स के स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ डिबेट करने के लिए जो हॉल बनवाया था उसे इबादत खाना कहते थे। Brace yourselves for another UPSC trap. Local leadership terms. See, नॉर्थ इंडिया में विलेज हेडमैन को महाथारा या पाटकीला कहा जाता था, लेकिन अगर आप साउथ इंडिया जाते हैं तो एक लोकेलिटी या नाडू के लीडिंग मैन को नक्टार बोलते थे। और अगर आप मिडिवल डेक्कन या महाराष्ट्र रीजन की बात करें तो वहाँ के विलेज सर्वेंट्स और आर्टिसंस को बलूतेदार्स कहा जाता था। अगर आपने रीजन मिक्सअप कर दिया तो ऑप्शन पक्का गलत हो जाएगा। सो कीप महाथारा इन द नॉर्थ, नट्टार इन द साउथ एंड बलूतेदार्स इन द डेक्कन। Keep them strictly separated in your mind. Okay, Section 5, Literature, Science, and Art. Let's talk ancient texts. तोलकापियम एक एब्सोल्युटली फाउंडेशनल तमिल ग्रामर टेक्स्ट है, संगम एज का। फिर आती है अमुक्तम मल्यादा, जो कृष्णदेवराया ने लिखी थी। ये एक तेलुगु एपिक पोएम है, सेंटरिंग अराउंड द वेडिंग ऑफ अ विष्णु अवतार एंड अंदल। और ये तीसरा टर्म देखिए, नोट्स परफेक्टली स्पेसिफाई करते हैं। उपरागा क्रिया करमा, ये पानिनी की लिखी हुई बुक है इक्लिप्सिस के ऊपर। गाइस, ये डायरेक्टली CAPF का PYQ है। वर्ड बाय वर्ड ब्रेक करें, क्रिया मतलब प्रोसेस और उपरागा यानी इक्लिप्सिस। बुक अबाउट द प्रोसेस ऑफ इक्लिप्सिस। जस्ट लॉक दैट फैक्ट इन राइट नाउ। Now let's rapidly decode these highly technical terms. I'm going to slow down here. Lavalas technique, basically prehistoric flakestone tools बनाने का एक specialized तरीका था, जो primarily Levant और यूरोप में मिला था। ध्यान रहे, हड़प्पा में नहीं। Then we have the Kattapayadi system. ये एक incredible ancient numeral system था जो केरला के वरारुचि ने develop किया था to calculate the moon's position. Basically alphabets को numbers assign किए जाते थे calculation के लिए। आर्ट में आए तो भुजंगत्रासिता एक स्पेसिफिक पोज या मुद्रा है चोला पीरियड की नटराज ब्रॉन्ज मूर्ति में। इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है फ्राइटन्ड बाय अ स्नेक। और तमिलनाडु एरिया में उन ब्रेव हीरोज की मेमोरी में जो मेमोरियल्स या पत्थर लगाए जाते थे, उन हीरो स्टोन्स को वीरागल कहा जाता है। टेक अ सेकंड टू डाइजेस्ट दैट। Finally, Section 6, our mega revision and MCQs. हमने इतने सारे टर्म्स डिकोड कर लिए हैं, but active recall is the only way you'll remember them. Let's do a rapid prelims booster timeline walkthrough. सबसे पहले प्री हिस्ट्री से लेवलॉइज टेक्निक के स्टोन टूल्स आए, फिर वैदिक एज में सैक्रिफाइसेस के लिए यूपा पोस्ट लगे, फिर डीप साउथ में संगम एज के दौरान तोलकप्पियम तमिल ग्रामर लिखी गई, फिर आते मिडीवल टाइम्स जहां सल्तनत ने आर्मी ऑफिसर्स को लैंड रेवेन्यू देने के लिए इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया, और फाइनली मुगल एज में अकबर ने इबादत खाना बनाया व स्पिरिचुअल डिस्कशंस। देखा कैसे पूरी हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकली जुड़ रही है। Let's do one last lightning fast English revision of our top tricks. खुद का खेत यानी खुदकश्ता, रेजिडेंट किसान, पाहे कश्ता, बाहर के किसान, एन से नानकाई यानी वेट पैडी, पुंचाई यानी ड्राई,
शिवाजी के तीसरे नयन से नैनार्स तो बचे हुए अलवार्स विष्णु भक्त और श्रेणी एंशिएंट इंडिया में जनरल गिल्ड था, जबकि मणिग्रामम स्पेसिफिकली साउथ इंडिया में इंडियन मर्चेंट्स का गिल्ड था। दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू रिवाइज इफेक्टिवली। Okay, let's test you with a highly likely 2026 PYQ style MCQ. Question पे ध्यान दे. Which of the following accurately describes the Dadni system and Vishti? Take a second, read the options, guess कीजिए. Yes, absolutely option B is correct. हमें अब क्लियरली पता है कि दादनी एक ऑप्रेसिव डेट ट्रैप था जिसमें एडवांस पेमेंट और लोन दिया जाता था, और विष्टि का मतलब होता है बिना पे के हार्ड फोर्स लेबर। ऑनेस्टली, हाउ इजी इज दिस नाउ? आई रियली होप इस मास्टर क्लास ने आपके दिमाग से इन 42 एंशिएंट एंड मिडीवल टर्म्स का डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया होगा। बिकॉज रिविजन इज एब्सोल्युटली की हियर। पीडीएफ और हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करने के लिए यूट्यूब चैनल के बायो में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर लो, राइट? कीप रिवाइजिंग, कीप फाइटिंग फॉर योर ड्रीम रैंक। लेकिन जाने से पहले एक क्विक प्रोवोकेटिव थॉट। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी आज के मॉडर्न डिजिटल ट्रेड वर्ल्ड में ऑपरेट कर रही होती तो उनका दस्तक पास कैसा दिखता? Think about that, and I'll see you in our next explainer.